Hello students, good evening. In the previous class, we have talked about journal entries and this is the session 2 of the journal entry. पहली की क्लास की continuation में आज हम journal entries के आगे वाले चीजों को पढ़ते हैं. So again, I like to start with the class without any delay. So in the previous class, just a small revisit. In the previous class we have talked about the basic thing. जैसे हमने बात करी थी कि business started with cash, एक capital की बात करी थी and उसके बाद हम goods purchases, sales, purchase return, sales return and expenses और income के बारे में हमने बात करी थी. In this class we'll be able to cover full and final settlement and on account term, capital expenditure and revenue expenditure term, trade discount and cash discount transaction and banking transaction. So let me start with the full and final settlement and on account. What is the difference between full and final settlement and on account? बच्चों बहुत छोटा सा एक डिफरेंस होता है full and final settlement and on account में. जैसे हम full stop और comma का डिफरेंस समझते हैं वैसे ही full settlement और on account का डिफरेंस होता है. Full settlement का मतलब होता है full and final settlement कि इसके बाद nothing is going to be received or nothing is going to be paid. Like in this transaction, received from Mr. Ram 49,500 in full and final settlement of 50,000. So it means कि 500 जो है हमने ऑफर किया है डिस्काउंट को. और इससे मैं एक चीज और कनेक्ट करना चाहूंगा. जब मैंने टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज बताया था तो मैंने बताया था एक सिंपल जर्नल एंट्रीज होता है, एक कंपाउंड होता है और एक ओपनिंग जर्नल एंट्रीज होता है. सो सिंपल जर्नल एंट्रीज हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं. When in a transaction, when only two aspects are there, and out of the two aspects, if one aspect is being debited and another is being credited, so this is called simple or single journal entry. Now, what about the compound journal entries? Compound journal entries को क्या बोल सकते हैं? When in a transaction, if there are more than two aspects, this is called compound journal entries. Yes, this is a compound. This can be a compound entry. Why? Because we supposed to receive 50,000 from Mr. Ram, but we have received 49,500. It simply means that we have offered him a discount of 500 rupees. तो इसमें आप देख सकते हो कि 3 ट्रांजैक्शन हो गई. तो इसके लिए एंट्री आप क्या पास करोगे? बहुत सिंपल सी, कैश अकाउंट डेबिट, whatever you receive, that is 49,500. Discount allowed account debit, $500 to Mr. Ram's account, and that is 50,000. सपोज इसमें डिफिकल्टी आ रही हो तो आप स्प्लिट कर सकते हो. सी, वी सपोज टू रिसीव 50,000 फ्रॉम मिस्टर राम. Out of 50,000, he has paid 49,500. It means we have received 49,500 from Mr. Ram and we offered a discount of 500. तो देखो जब रिसीव करते हो तो एंट्री क्या पास करते हो आप? कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट करोगे एंड जब आप डिस्काउंट ऑफर करोगे डेफिनेटली डिस्काउंट वुड बी अ लॉस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तो लॉस आपका जब भी इंक्रीज होगा, आई मीन एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होगा, इट्स सपोज टू बी डेबिटेड. तो इसके लिए आप क्या करोगे? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, discount allowed account debit with 500 rupees to Mr. Ram's account. अब देखो इसको मैं कंपाउंड एंट्री कैसे बनाता हूं. ये दो सिंपल एंट्रीज हैं. इन दो सिंपल एंट्रीज में कॉमन टर्म क्या है? मिस्टर राम्स इन द क्रेडिट साइड इन द फर्स्ट एंट्री एंड मिस्टर राम in the credit side in the second entry. So you can combine it and finally ये क्या बन जाएगा? Cash account debit, discount allowed account debit to Mr. Ram's account. When the two simple entry, when the two single journal entries is being combined together, that becomes the compound journal entry. एक चीज. दूसरी चीज क्या हो सकती है कि when in a transaction, when you find more than two aspects, then also it is considered to be a compound entry. या इसका हम compound journal entries बना सकते हैं. और दो सिंपल journal entries को combine कर लिया तो ये भी आपका compound journal entries बन जाएगा. Now, moving to the next, paid to Mr. Mohan 39,900 in full and final settlement. See, we owe 40,000 to Mr. Mohan, but we have paid 39,900. And now here is a term, this is very important, full and final settlement. It means after this payment, you are not going to pay anything to Mr. Mohan.
So this is the final settlement. This is the full and final settlement. So whatever difference we have, that is considered as a discount. And what kind of discount is this? Yes, this is a discount received. ये क्या होता है? ये discount received होता है. तो कैसे एंट्री पास करेंगे? बहुत सिंपल सा. We are liable to pay, तो Mr. Mohan's account debit. $40,000 to cash account 39,900. To discount received account समझने का फिर से वही तरीका आप अपने लिए रेफर कर सकते हो. सी वी सपोज टू पे 40,000 टू मिस्टर मोहन. ऑलराइट, इसमें से हमने 39,900 उसको कैश में पे कर दिया. तो जब भी हमने पेमेंट करा तो इसके लिए एंट्री क्या हो सकती है? मिस्टर मोहन अकाउंट डेबिट, मिस्टर मोहन अकाउंट डेबिट बाय 39,900 टू कैश अकाउंट. और ये जो 100 रुपीज का रिबेट है, दिस इज अ कंसेशन, राइट? ये हमें बेनिफिट मिल रहा है, इसको एक्चुअली डिस्काउंट ही बोलेंगे. तो मिस्टर मोहन्स अकाउंट डेबिट, मोहन्स अकाउंट डेबिट 100 रुपीज टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. और ये कितने का हो जाएगा? 100 का. सो इन दिस एंट्री यू फाइंड कि दो सिंगल जर्नल एंट्रीज में देयर आर टू कॉमन टर्म्स. मिस्टर मोहन इज इन द डेबिट साइड इन 39,900 के अमाउंट में, एंड मिस्टर मोहन इज ऑल्सो इन द सेकेंड एंट्री. वी हैव द सेम थिंग. सो जस्ट कंबाइन दिस. तो इसको दो सिंपल जर्नल एंट्रीज को, दो सिंगल जर्नल एंट्रीज को आपने कंपाउंड करके एक कंबाइन करके कंपाउंड जर्नल एंट्रीज बना दिया. ठीक है. नेक्स्ट है ऑन अकाउंट. ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है? पार्शियल पेमेंट. फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? फाइनल पेमेंट. इसके बाद कोई पेमेंट नहीं होगी. If you are going to receive something and if full and final settlement is mentioned, तो जो difference होगा उसको आप discount allowed करोगे क्योंकि आप receive कर रहे हो. और जब while making the payment आप कम less payment करोगे, and if the full and final settlement term is mentioned, तो आप उसको term को discount receive करोगे, difference को. On account का मतलब क्या होता है? Partial payment. On account का मतलब क्या होता है? Partial payment. Receive from Mr. Ram 49,500 on account of 50,000. Even ये क्वेश्चन में हो कि receive from Mr. Ram 49,999 rupees from Mr. Ram on account of 50,000. It also means that ये partial payment है. 1 रुपये का ही difference है, लेकिन ये partial payment है. It means उसको फिर से 1 रुपया मिलना है. This is not the final settlement. तो ऑन अकाउंट का मतलब हर टाइम जब भी देखेंगे आप पार्शियल पेमेंट से आपको कनेक्ट करके देखना है. तो ये बहुत बेसिक सा ट्रांजैक्शन है. रिसीव हमने करा है मिस्टर राम से, तो सो द जर्नल एंट्री शुड बी कैश अकाउंट डेबिट 49,500 टू मिस्टर राम्स अकाउंट. Alright. Next, paid to Mr. Mohan 39,900 on account. Again, account means partial payment. So here we are making the payment to Mr. Mohan. So the journal entry should be Mr. Mohan's account debit to cash account, or the value would be 39,900. Mr. Mohan's account debit to cash account, and the value would be 39,900. Now, capital expenditure and revenue expenditure. Now, what is a capital expenditure and what is a revenue expenditure? In simple manner, capital expenditure का मतलब होता है buying an assets is called capital expenditure and maintaining an assets is called revenue expenditure. Just take an example, you bought a car. So, buying a car is a capital expenditure, and when you send for servicing, so that is a revenue expenditure. आपने देखा होगा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्स शोरूम प्राइस एंड ऑन रोड प्राइस. सो बेसिकली आप एक्स शोरूम प्राइस को कंसीडर करोगे या ऑन रोड प्राइस को कंसीडर करोगे? डेफिनेटली ऑन रोड प्राइस को कंसीडर करोगे. एंड दैट इज द लॉजिक
कि एक्स शोरूम प्राइस से जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट हम पे करते हैं, लाइक रजिस्ट्रेशन चार्जेस, इंश्योरेंस, रोड टैक्स एंड वट एवर एडिशनल अमाउंट यू पे फॉर इंस्टॉलिंग सम एसेसरीज, वो सारे अमाउंट को सम अप करके एंड उसके बाद, क्योंकि जब इन हैंड आपके पास आया था तो उसकी जो वैल्यू होगी वो सारे वैल्यू को कंबाइन करके होगी, एंड दैट इज द प्रोबेबली लॉजिक. आप देखोगे गूगल पे सर्च करोगे वट एवर फेवरेट कार ऑफ योर्स, एक्स शोरूम प्राइस एंड ऑन रोड प्राइस इज डिफरेंट. तो बाइंग एन एसेट्स इज कॉल्ड अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो जब भी आप एसेट्स को परचेज करते हो, टिल द टाइम ऑफ इट्स इंस्टॉलेशन वट एवर एक्सपेंडिचर वी मेड, दैट एक्सपेंडिचर नीड टू बी एडेड, राइट. तो जैसे मैं इस क्वेश्चन में ले रहा हूं, मशीनरी परचेज फॉर रुपीज 9 लाख, पेड रुपीज 40,000 फॉर कैरेज एंड 60,000 फॉर इंस्टॉलेशन. आपने मशीनरी की जो कॉस्ट थी वो कितनी ले ली? कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीनरी इज से 9 लाख. Cost price of machinery is 9 lakh. You paid 40,000 for carriage. Carriage पे आपने 40,000 पे कर दिया, right? Installation पे आपने 60,000 पे कर दिया. तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी? 10 लाख रुपीस की. और कौन सा कॉस्ट कंसीडर करने वाले हो, 9 लाख या 10 लाख? डेफिनेटली 10 लाख, क्योंकि मशीन खरीदने से नहीं होगा. मशीन को जब तक इंस्टॉल करने के बाद, जब तक प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होती, तब तक ये हमारे लिए कोई वर्थफुल नहीं है. तो वट एवर एक्सपेंडिचर वी पेड टू इंस्टॉल द मशीनरी, टू गेट द मशीनरी इंस्टॉल, तो वो सारे एक्सपेंडिचर इसमें आप ऐड कर दोगे और इसका सिंपल सा कॉमन सा जर्नल एंट्रीज हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. Machinery account debit to cash account, and the value is 10 lakh. ठीक है. नेक्स्ट, दिस एग्जाम्पल इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने जैसे बताया कि मेंटेनिंग एन एसेट्स इज कॉल्ड अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. उसमें सारी वैल्यू को सम अप कर लेते हैं. इसमें सारी वैल्यूज को सम अप नहीं करते, इसमें अलग अलग दिखाएंगे. आई हैव टेकन एन एग्जांपल, गुड्स परचेज फॉर रुपीज 25,000 एंड पेड 5,000 फॉर इट्स कैरेज. तो इसके लिए आप एंट्री क्या पास करोगे? बहुत सिंपल सी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट बाय 25,000, carriage account debit to cash account. Next one is the trade discount and cash discount. Now what is the difference between the trade discount and cash discount? See, this is the discount. Trade discount and cash discount. Trade discount is offered by the supplier to the buyer to purchase, to encourage the customer to buy in a bulk. जब भी कस्टमर परचेज करता है in a bulk, so he'll be offered a trade discount. And cash discount कब होता है? In order to encourage the customer to make the instant, immediate or prompt payment, इसके लिए हम cash discount offer करते हैं. Trade discount is not a financial transaction, इसलिए हम इसको सिर्फ subtract कर देते हैं और हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं. As far as the cash discount is concerned, yes, it is a financial nature transaction, तो इसको हम डिडक्ट भी करते हैं और हम इसको रिकॉर्ड भी करते हैं. ट्रेड डिस्काउंट बहुत सिंपल सा है. जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैं आपको थोड़ा लॉजिक इसका समझा देता हूं. लॉजिक क्या है कि सपोज ये मैन्युफैक्चरर है, राइट? मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेचता है, होलसेलर रिटेलर को, और रिटेलर फाइनली कस्टमर को बेचता है, राइट? तो सपोज मैंने क्या कहा, ट्रेड डिस्काउंट कैन बी ऑफर्ड व्हेन यू परचेज इन अ बल्क. तो डेफिनेटली एक 100 रुपीज की जो कोई भी एक आइटम ले लो, वो 110 में पास ऑन हुआ होगा होलसेलर के पास, 110 का 120 में रिटेलर को पास ऑन हुआ होगा, एंड ये 130 में कस्टमर को पास ऑन हुआ होगा. सपोज कस्टमर को परचेज करना है बल्क में, सो इंस्टेड ऑफ परचेजिंग फ्रॉम द रिटेलर ही कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द होलसेलर. और ये जो बेनिफिट इसको मिल रहा है, ये बेनिफिट मतलब रिटेलर के प्राइस में डायरेक्टली उसको मिल जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड अ ट्रेड डिस्काउंट. Here you can initially see I have taken a value like suppose 100 रुपीज का एक पेन है जो 110 में होलसेलर का ऑफर होता है.
110 का होलसेलर पास ऑन करता है अपने रिटेलर को 120 रुपीज में, 120 का रिटेलर पास ऑन करता है कस्टमर को 130 में। सपोज कस्टमर को बल्क क्वांटिटी में चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ अप्रोचिंग टू द रिटेलर ही कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द होलसेलर एंड गेट दिस पेन एट अ सेम प्राइस व्हाट रिटेलर इज गेटिंग। इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। इसमें हम समझ सकते हैं इसकी वैल्यू को हम रिड्यूस कर देते हैं। जैसे हियर द वैल्यू इज 1 लाख, गुड्स प्राइस इज, the price of the goods is 1 lakh and there is a trade discount of 10%. So less trade discount at the rate of 10%. So 10% of 1 lakh will give you how much? 10,000. So now the value comes down to 90,000. The entry should be purchases account debit, purchases account debit. Since the name of the person is not mentioned, so I can directly write purchases account debit to cash account, because this trade discount can also be offered for a credit transaction as well as the cash transaction. ये दोनों में ऑफर किया जा सकता है, लेकिन इस ट्रांजैक्शन को हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं ले सकते। उसका भी बड़ा रीजन है। जैसे गुड्स परचेज फॉर रुपीज 1 लाख एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% फ्रॉम किसी का नाम होता है, फ्रॉम राम, मोहन, वट एवर नेम, तो इसका मतलब है कि ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन था। लेकिन सिंस द नेम इज नॉट स्टेटेड, सो वेदर इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, सो इफ द नेम इज नॉट गिवन, सो वी कैन इजिली कंसिडर दैट दिस इज अ कैश ट्रांजैक्शन, राइट। नाउ अब इसमें मैंने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों को ले लिया, तो नाउ यू माइट कंफ्यूज कि ट्रेड डिस्काउंट को पहले लेना चाहिए या कैश डिस्काउंट को लेना चाहिए। आप बोलोगे सर ट्रेड डिस्काउंट पहले है तो ट्रेड डिस्काउंट को ले लेंगे, उसके बाद कैश डिस्काउंट को ले लेंगे। कभी कभी आपका कैश डिस्काउंट पहले गिवन होगा, ट्रेड डिस्काउंट बाद में गिवन होगा, तब भी आपको ट्रेड डिस्काउंट को पहले डिडक्ट करना है एंड देन यू सबट्रैक्ट द कैश डिस्काउंट। तो यहां भी ऐसे पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। तो यहां द कॉस्ट ऑफ गुड्स इज so here's the cost of goods is say 1 lakh, it is given, less trade discount, and trade discount at the rate of 10%. So trade discount 10% of 1 lakh will give you how much? 10,000. So the value comes down to 90,000. Now after getting this value, cash discount is being offered. 5%. So 4,500 is being offered. So it means 85,500 is the final price. Now what is the logic? Why you subtract trade discount first and cash discount afterwards? It's real simple to understand, because whenever you purchase the quantity in a bulk, so you are being offered a trade discount, and due to the instant payment, immediate payment, prompt payment, you will receive again a cash discount. So definitely your selection would be first as far as your goods is concerned, as far as your buying quantity is concerned, and then you think about the payment. So cash discount, since you are making the instant, immediate or prompt payment, so you'll be offered a cash discount of 5%. इसकी journalities क्या कर सकते हैं? बहुत simple सा. Now purchases account should be debited. After trade discount, we bought the goods worth rupees 90,000. So purchases account should be debited with 90,000. And we made a payment of 85,500, and we have received a discount, that is the discount received. We have received a cash discount of rupees 4,500. So this is the final journal entries. Now we should learn some banking transaction also, day-to-day basis में cash deposit into bank. So the journal entry should be bank account debit, to cash account, and the value is 50,000 and 50,000 respectively. Now it is very simple. क्योंकि मैंने अब जो क्वेश्चन कर रहा हूं मैं स्ट्रेट अवे आपको जर्नलिटी सिखा रहा हूं, क्योंकि मैंने बेबी स्टेप आपको पिछले क्लास में समझा दिया था। कभी भी स्ट्रक करो तो फिर भी वही वाला जो बेबी स्टेप मैंने पिछले क्लास में बताया था वही आपको अप्लाई करने की जरूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी द ट्रांजैक्शन,
फाइंड आउट द टू एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन, उसका नेचर डिसाइड करो, फिर उसका नेचर डिसाइड करने के बाद उसको देखो वेदर इट हाउ डज इट अफेक्टेड, वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, and then apply the rules of debit and credit. Just like in this example, cash deposit to bank, so there are two aspects, bank and cash. तो जो मैंने बेबी स्टेप बताया था किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो, तो बैंक यहाँ एक एस्पेक्ट हो गया एंड सेकेंड एस्पेक्ट इज कैश. हर टाइम ये फॉलो करना है, कभी भी किसी एंट्री में आप स्टक होते हो तो हर टाइम आपको यही चीज करना है, सबसे पहले दो एस्पेक्ट ढूंढने हैं ट्रांजैक्शन में. तो यू फाइंड हियर इन दिस ट्रांजैक्शन यू फाइंड टू एस्पेक्ट, बैंक एंड कैश. देन नेचर ऑफ अकाउंट्स. So basically bank account is an assets and cash account is also an assets. And how does it affect it? So we always think on behalf of the business. So whenever we deposit cash into bank, so the business bank account will go up and business cash account comes down. So as per the rules of debit and credit under the modern approach, even in the traditional approach, but we follow the modern approach. Whenever asset increases, it's supposed to be debited, and whenever asset decreases, it's supposed to be credited. So bank account debit to cash account, and we know that always the debit come first. तो इसलिए debit को पहले लिखेंगे और दूसरे में हम लाइन में हम cash लिख देंगे. ये देखो cash withdrawn from bank है, तो ये दो बेसिस पे हो सकता है. Cash withdrawn from bank for official purpose, cash withdrawn bank for personal purpose, and cash withdrawn from bank for मतलब नथिंग इज मेंशन. पहले में कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक गिवन है फॉर ऑफिशियल पर्पस, तो इसके लिए ऑफिशियल रीजन हो गया, ऑफिशियल पर्पस के लिए हमने कैश विड्रॉ करा है. दूसरा है कैश हमने विड्रॉ करा है पर्सनल रीजन के लिए, लेकिन जैसे इस एग्जांपल में मैंने लिया है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक एंड नथिंग स्टेटेड कि पर्सनल रीजन है या ऑफिशियल रीजन है. तो व्हेनेवर द क्वेश्चन इज साइलेंट, सो बाय डिफॉल्ट ये ऑफिशियल रीजन है और इसके लिए आप जनरली इसका रिवर्स कर दोगे. देखो पैसे जब डिपॉजिट करोगे तो बैंक टू कैश, जब विड्रॉ करोगे बैंक ऑफिस के लिए तो ये रिवर्स हो जाएगा, कैश टू बैंक हो जाएगा. सो द जर्नल एंट्री शुड बी कैश अकाउंट डेबिट कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिशियल यूज. ये जो पर्सनल यूज, सो ये जो पर्सनल यूज है दिस इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स. ये पर्सनल यूज के लिए जो टर्म हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स. सो द एंट्री शुड बी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, and the value is 25,000. Next one, check received from Ram 10,000 and endorsed in favor of Mohan. Very interesting transaction. आपने एक चेक रिसीव करा राम से 10,000 का और आपने एंडोर्स कर दिया. इसका मतलब है कि यू हैव रिसीव्ड द चेक फ्रॉम योर कस्टमर एंड यू फॉरवर्डेड द सेम चेक टू योर क्रेडिटर, लेकिन आपने बीच में बैंक में डिपॉजिट नहीं करा है. तो जब भी बैंक में डिपॉजिट नहीं करोगे तो इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं चेक्स इन हैंड. सो द एंट्री शुड बी चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट from the account debit to the person from whom you received the check, so to Mr. Ram account, and now the same check is being forwarded in favor of Mr. Mohan. So the second entry is while endorsing, this is while receiving the check, receiving the check. And this is while endorsing the check. So now you have endorsed in favor of Mr. Mohan. So the entry should be Mohan's account debit. Mohan's account debit with the same value because same check is going to be endorsed to checks in hand account. All right. Next one is check received and deposited on the same day. ठीक है, तो चेक रिसीव करा आपने राम से अमाउंट रुपीज 20,000 on 5th Jan and deposited on the same day. So the entry should be on the 5th Jan. 5th Jan, the entry, when you receive the check from Ram and deposited immediately in the bank, so the entry should be bank account debit to Ram's account. मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूं.
बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट. सपोज ये सेम चेक इफ इट इज बीइंग डिसऑनर्ड, इफ इट इज बीइंग डिसऑनर्ड. डिसऑनर्ड का मतलब बहुत सिंपल सा है, जो हम यूज करते हैं टर्म बाउंस हो गया चेक. चेक बाउंस नहीं होता, राइट? चेक डिसऑनर्ड होता है. whenever you have given a check, whenever you have promised someone to make the payment on a particular time, particular date, और आपने पेमेंट नहीं करा, so this is a condition of dishonoring. ठीक है, सो आप उसको डिसऑनर कर रहे हो. इसका मतलब डिसऑनर करने का मतलब सिंपल ये नहीं होता कि हम उसको गुस्से से बात करें. हम सिंपल डिसऑनर कर दिया हमने. वट एवर प्रॉमिस वी हैव गिवन ऑन द बेसिस ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपने उस प्रॉमिस के ऊपर स्टैंड नहीं करे. सो दिस इज कॉल्ड डिसऑनरिंग. डिसऑनरिंग का मतलब जब भी हम सोचते हैं तो सिर्फ एक ही बात आती है कि अकाउंट में पैसे नहीं होंगे. दिस इज वन ऑफ द रीजन, बट नॉट ऑलवेज. टेक्निकल ग्राउंड्स में भी हो सकता है आपके सिग्नेचर मैच ना कर रहे हो सकता है कि आपने लिखते टाइम कुछ करेक्शंस करी हो, कुछ कट करा हो, इसके लिए नहीं हो. सो देयर आर सो मेनी रीजंस. आई हैव गिवन यू फ्यू रीजंस, लेकिन और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से चेक डिसऑनर हो सकता है. तो जब भी डिसऑनर होगा, आई हैव एज्यूम कि ये जो चेक है ये मान लो 7th को डिसऑनर हो गया. So the reverse entry has to be passed. जब हमने रिसीव करा था और डिपॉजिट करा था, the entry was bank account debit to Ram's account. जब डिसऑनर होगा, the entry should be reversed. It should be Ram's account debit. It should be Ram's account debit to bank account. All right. Next one. Check received and deposited on the next day and is being dishonored. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ट्रांजैक्शन, चेक रिसीव फ्रॉम राम अमाउंटेड टू 20,000 on 5th Jan, deposited in the bank on 6th Jan and dishonored on 9th Jan. तो इसमें 3 एंट्रीज होंगी. 5th Jan को when you receive the check but not deposited in the bank. So whenever you receive the check and not deposited in the bank, so the term is checks in hand account debit. You can use checks in hand account debit. Checks in hand account debit to Ram's account. And the value is same, 20,000. 20,000. Now, on 6th Jan, you have deposited the same check into the bank. Alright. So, the entry should be, bank account debit to checks in hand account. To checks in hand account, and the value is again same, 20,000, 20,000. This is 20,000. Now, on 9th Jan, it is being dishonored. So, the entry should be reversed. इसके लिए एंट्री क्या पास कर सकते हैं? बहुत सिंपल सा. जब हमने रिसीव करा था चेक्स इन हैंड टू राम, जब हमने डिपॉजिट करा नेक्स्ट डे में, तो बैंक टू चेक्स इन हैंड, और जब डिसऑनर हो जाएगा, सो एंट्री हो जाएगी आपकी राम्स अकाउंट डेबिट, राम्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. आप इसको किसी भी टाइम चेक कर सकते हो कि आपने जो एंट्री पास करी है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है. ये बहुत लॉजिकल है और बहुत इजीली आप चेक कर सकते हो. देखो, आपने चेक रिसीव करा, फिर उसको नेक्स्ट डे आपने डिपॉजिट करा, और उसके 1-2 दिन के बाद ये डिसऑनर हो गया. इसका मतलब ये हुआ कि हमने चेक रिसीव करा, डिपॉजिट करा और डिसऑनर हो गया. इसका मतलब चेक हमें मिला ही नहीं, पेमेंट नहीं मिला, इसका मतलब चेक हमें मिला ही नहीं, राइट? तो इसका मतलब है कि एट द एंड ऑफ द डे ऑल द एंट्रीज इज बीइंग रिवर्स. हर एंट्री कैंसिल हो जाएगी, और ये कैंसिल हो रही है, इसका मतलब आपने एंट्री ठीक पास करी है, नहीं तो आपने एंट्री गलत करी है. चेक कर लेते हैं. देखिए, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, तो जितने से आपने चेक्स इन हैंड को डेबिट करा है उतने से सेकंड एंट्री में आपने क्रेडिट करा है, तो द एंट्री इज नलिफाइड, ये कैंसिल हो गया. राम को जितने से क्रेडिट करा है उतने से थर्ड एंट्री में राम को आपने डेबिट करा, तो ये भी कैंसिल हो गया. बैंक को जितने सेकंड एंट्री में आपने डेबिट करा है उतने से बैंक को क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब है उसको आपने कंप्लीटली सारे ट्रांजैक्शन को कैंसिल आउट कर दिया है. डेबिट सेम एंट्री को करना, उसको फिर दूसरी एंट्री में क्रेडिट करने का मतलब है बैलेंसिंग कर देना. क्योंकि डेबिट करने का मतलब जैसे क्या होगा कि बैंक को डेबिट करा, इसको व्हाट डज इट मीन? एवरी अकाउंट हैज सम स्टेटमेंट. बैंक को आपने डेबिट करा, इसका मतलब क्या है कि बैंक को आपने इंक्रीज कर दिया. आपने रिसीव करा तो बैंक को आपने इंक्रीज कर दिया, लेकिन थर्ड एंट्री में आपने बैंक को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया. इसका मतलब जितने से आपने रिसीट दिखाया था उसको सिमिलर अमाउंट को आपने पेमेंट दिखा दिया. तो वो क्या होगा? जितना का रिसीट है उतना का पेमेंट है, तो इसका मतलब कैंसिल आउट हो गया. So this is a very important transaction we have. So this is it for today. Thank you so much. Take care.
एंड गॉड ब्लेस यू। और ऐसे सेशन मैं थर्ड सेशन भी लेके आऊंगा और जर्नल के ऊपर सारा का सारा आपका क्लैरिटी आ जाएगी। बस कॉन्सेप्ट को फोकस करते रहिए और जब भी कोई प्रॉब्लम है तो जैसे मैंने बताया आपका इसका गुरु मंत्र है कि ट्रांजैक्शन को देख लीजिए, उसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, नेचर ऑफ अकाउंट्स देख लीजिए एंड हाउ अफेक्टेड, एंड देन यू कैन अप्लाई द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये बहुत गुरु मंत्र टाइप है, इसको आप अच्छे से करेंगे डेफिनेटली आपके जर्नल एंट्रीज में एक भी चीज प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जर्नल एंट्रीज फाउंडेशन है, इसलिए इजी गोइंग में धीरे धीरे कुछ कुछ ट्रांजैक्शन कुछ कॉन्सेप्ट के साथ मैं कोरिलेट करने की कोशिश करता हूं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। कोई भी प्रॉब्लम हो एंड यू फील फ्री टू आस्क, और आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।